Hmm, welcome, my friends. I hope you are fine. I'm fine, but I was doing a lot of job, a lot of works. I bro- I was working for my office, and then I came back, and uh, then I saw this big boss, and then I prepared some tea, and I almost prepared my dinner. Yeah, late night dinner, but okay. I will make it after I finish this video. So how are you guys? Yesterday Salman sir has has declared the elimination of um, Arshi Khan, and then uh, he just uh, uh, he just went in a very pensive mood and good mood, and then it made me very happy, and then I could concentrate on my job today, and I have come back, and today it was so good, and everybody was in a fresh mood in Big Boss house, and it made me feel so good. When you see a good vibration, everybody is dancing, everybody is happy, everybody is in good clothes, and they are wearing good clothes, and they are not fighting. This is a very rare thing to see. Okay, yeah, welcome to my tea party, late night tea party. Okay, today this is masala tea. Mm. mm. Now, today I have noticed a lot of things in Big Boss. I can't speak very fast, so I will speak very gently and softly. You can listen to me, and you can decide that whether you agree with me or not, and you can comment below, and if you subscribe me, I will be able to bring you in my chat. Okay, so and then I will be able to hear from you too. Yeah, why not? So my point is a connection week. Everybody has come. 7 members has come for 7 people inside. Uh, Jan Kumar Shanu, who got eliminated, and before elimination he got connected with Nikki Tamboli, right? If I'm not wrong. So Jan Kumar Shanu has come back to not as a contestant, as a connection. After 1 week, he will move out, and it is Jan Kumar Shanu for Nikki Tamboli, and it is one by one. I'm remembering and saying it is for Abhinav. Rahul Mahajan has come for Abhinav, and yeah, I have noticed one thing. This yesterday for Arshi Khan, her elder brother had come, but she got eliminated. So from outside only उनको जाना पड़ा था, राइट? और सलमान सर ने भी ये बोला था, अगर कोई एलिमिनेट होता है तो जो लोग अंदर जाने वाले हैं वो लोग उन लोग में से एक इंसान अंदर नहीं जा पाएगा जो एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन फिर भी सबको बुलाया गया। ये एक प्रेस्टीज दिया है ना। लेकिन अर्शी खान जो चली गई, तो उनका ब्रदर आते हुए भी अंदर आ नहीं सके। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा आज का जो ये एपिसोड देख के कि सब लोग डरे हुए थे। पहले ही अंदर आने की इजाज़त जब मिली, तब सभी ना बहुत ज़ोर से हग किया सबको, एक दूसरे को एम्ब्रेस करते हैं ना, हग एम्ब्रेस, वैसा हुआ। और बहुत जल्दी जल्दी जो बोलना चाहते हैं फटाफट बोल दिया। मुझे लगा बहुत जल्दी जल्दी से अली का गेम अच्छा जा रहा था, तो फिर
उन्होंने बहुत रिलैक्स वे में बात किया जस्मीन, बट अदर पीपल लाइक अभी तक का जो मैंने देखा है, अदर पीपल बहुत जल्दी जल्दी बात कर रहे थे। मतलब जैसे कि मैंने राहुल महाजन को देखा, उनका अभिनव शुक्ला जी का कनेक्शन बन के आए हैं। He came as connection of Abhinav Shukla, but he did not talk to him much. He was mostly talking to राखी सावंत, क्योंकि वो जब एलिमिनेट हुए थे, राहुल महाजन जब एलिमिनेट हुए थे, तो उनकी इक्वेशन विथ राखी सावंत गॉट डिस्ट्रॉयड अ लिटिल बिट। सो पहले जब उनको मिला अंदर आने के लिए, पहले वो बैठ गए उनके साथ, राखी सावंत के साथ बैठ के अपना जो भी है बुरा बुरा बोला था, वो अच्छे के लिए बोला था, हस्बैंड नहीं है ये सब बोल के उन्हीं के साथ ज़्यादा टाइम लेके ज़्यादा उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे, कि बोल रहे थे कि नहीं नहीं मेरा इंटेंशन बुरा नहीं है, मेरा इंटेंशन अच्छा है, तेरे साथ मैं दोस्ती कर रहा था, मेरा इंटेंशन बुरा नहीं है, बार बार बोलते हुए सुना है। पर आप तो आपकी जो इमेज आप करके आए हो, तो मेरे अंदर तो वही इमेज है कि आपके साथ इमेज जो खराब हुआ, आप अंदर जाके बोल रहे हो। और वो भी राखी सावंत भी अनकंफर्टेबल फील कर रही है, ऐसे करके बैठी थी। थोड़ा सोच में पड़ गई, ये मेरे साथ इतना बड़बड़ क्यों कर रहा है। और जबकि राखी सावंत के लिए कनेक्शन ऑलरेडी भेजा गया था, राखी सावंत के लिए ऑलरेडी हमारी बिंदु पाजी बहुत पसंद करती हूँ मैं। वो देखिए सारा मेकअप लेके इतना बवाल हुआ था, बिंदु पाजी सब मेकअप वेकअप लेके जा रहे हैं, गए अंदर और सारा मेकअप दे दिया, परफ्यूम दे दिया। तो अभी सब लोग टुकुर टुकुर देख रहे हैं ऐसा करके, कितना अच्छा अच्छा ब्लश और मेकअप सब आ गया। तो अभी देख रहे हैं कि इसका तो सब आ गया। तो राखी सावंत जी का मन कितना अच्छा दिखाया, निकी को बुला के बोला अब सब कुछ आ गया, अब तो यूज़ कर सकती है। लेकिन देखिए वो एक बार ज़रूरत नहीं है, वो चुप रह सकती थी। वो बदतमीज़ी यहाँ भी उसने, निकी तंबोली ने फिर से बदतमीज़ी की कि ज़रूरत नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। तो अगर तेरे पास अगर सब कुछ होता तो यूज़ की क्यों की थी। और तूने दे के एक छोटा सा चीज़ दे के बड़ा वाला चीज़ एक्सचेंज में ले लिया, ज़्यादा यूज़ कर लिया, छोटा वाला एक चीज़ दे दिया। हाँ, ऐसे करते हैं लोग ना मुद्दा बनाने के लिए। जो निकी तंबोली का गेम है मैं समझ रही हूँ। और निकी तंबोली के लिए अभी जो अंदर किया वो है जान कुमार सानू। तो जान कुमार सानू कहीं ना कहीं क्या बोलना चाहते थे मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, शायद और एक एपिसोड देखूंगी। तो वो निकी तंबोली को क्या इंडिविजुअल खेलने के लिए बोल रहे हैं, अभिनव जी के अगेंस्ट में ही कुछ बोल रहे थे। मुझे अच्छे से समझ में नहीं आया, जान कुमार सानू कुछ मतलब मन में है कुछ और बोल रहे थे ऐसा लगा। आपके साथ लाइव चैट कर पाती तो आपसे सुन के मैं वो सीख पाती कि क्या कनेक्शन के हिसाब से आके क्या सिखाना चाहता है। ये मुझे थोड़ा सा उस पार्ट क्लियर नहीं हुआ। एक लाइव चैट में होती तो मैं, या फिर सामने कोई और होता या दोस्तों से मेरी बात हो पाती, वो जान के मैं आपको ना वो जान के ना मैं आपको वो बता सकती थी, या तो फिर किसी के साथ कनेक्ट होके पूछ के आपको फिर कल मैं बता सकती हूँ, या तो फिर एपिसोड में समझ में आए कल बिग बॉस का, तो मैं आपको बता पाऊँगी, ठीक है। अभी जान कुमार सानू जो बोला वो समझ में नहीं आया कि रुबीना दिलेक को सपोर्ट करना है, अभिनव शुक्ला को सपोर्ट नहीं करना है। वो ऐसा कुछ बोला था हाफ हाफ। और निकी भी कंफ्यूज हो गई, तो फिर चुप करा दिया। फिर बोला कि मैं आया हूँ मेरा सुनेगा, बोला हाँ ठीक है, मान लिया क्योंकि उसके लिए उसको भेजा गया। लेकिन मुझे जान कुमार सानू कुछ ना कुछ अपना ही सुधारने के लिए आया ऐसा लग रहा है, अपना पुराना इम्प्रेशन ठीक करने के लिए आया। जो गलती के वजह से वो निकल गया था निकी के साथ में, वो ठीक करने की कोशिश कर रहा है। ये मुझे अच्छा नहीं लगा। और एक अहम बात है, अली के लिए
जैस्मिन भसीन आई। वो जैस्मिन भसीन जब घर पे थी, अली का गेम खराब करने का कोशिश भी वो की थी। वो चाहती थी कि उसी के साथ गेम खेल के अली एक बार निकल गया था, फिर वापस आया, अली एकदम कंट्रोल कर लिया, फिर वो निकल गई, फिर वापस आके उनको रोना आ रहा है। सब देख के याद क्यों आ रहा है? उनको तो खुश होना चाहिए कि अली अंदर है, अली खेल रहा है, लेकिन वो अली के लिए खुश नहीं देख रही है। मुझे कुछ कुछ ऐसा लग रहा है कि वो बार बार जो रो रही है, राहुल महाजन जो समझा रही है, तो रो क्यों रही है? एंजॉय कर, एंजॉय कर। अच्छा बोला राहुल महाजन ने। तो फिर अली का गेम कहीं ना कहीं खराब करने आई है। वो जा जा के कुछ ना कुछ बता रही है, वो मुझे ठीक नहीं लगा। वो रुबीना दिलेक को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। हाँ, रुबीना दिलेक ने भी उनके अगेंस्ट बोले थे, और उनको जानना चाहिए कि ये गार्डन एरिया उनके घर के अंदर नहीं है, ये गार्डन एरिया बिग बॉस के घर के अंदर है, जहाँ पे वो कैमरा सामने है और बेल्ट पहन के बैठी हुई है, जिसमें एक माइक भी है, ऐसा वाला माइक है, और वो बात कर रही है, वो जस्मीन सुन रही है, और वो खुन्नस लेके वो आई है। उसको बुरा लगा था कि ये अभी सुधारना नहीं चाहते। अगर सुधारना चाहता है, कैमरे में देख के बोलना चाहिए था ऐसे कि जस्मीन मैं सुधारना चाहती, लेकिन कहीं से भी, क्योंकि रुबीना जी ये भी अपने पति को बोलते हुए मैंने सुना है कि मुझे जस्मीन की बात आप बोलते हो ना, जब भी आप बोलते हो ना कि जस्मीन के साथ मेरा ये डिफरेंसेस था और वही चीज़ तू कर रही है रूबी, मुझे बहुत चिढ़ होती है, मुझे उस नाम से भी चिढ़ होती है। तो ये सब चीज़ें तो आप ऐसे बेल्ट पहन के बोल चुके हो ना रुबीना जी, और वो अपने घर में बैठे बैठे खुन्नस भरी है। अब जब उसको वक्त मिला है, वो आई है, तो वो अली को कितना सपोर्ट करेगी मुझे तो नहीं पता भैया। मैं तो देख के डर गई, वो फिर से कुछ घमासान करने के चक्कर में है। तो रुबीना दिलक जी भी डर गई और अली को पकड़ के पास लाए, और हाथ पकड़ के, वो जैसे कि पैर नहीं पकड़ते, पास लाके एकदम सामने आ गया। सिस्टर हाँ बोलो, तो वो सामने आ गया एकदम पूरा। अली तो सिस्टर की तरह देखता है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला बॉन्ड। और इतनी हंसी आई, मुझे हंसी भी आया, क्योंकि अली को पास बुला लिया, पहली बार ऐसा देखा। वो पास जाके हक देती है, मतलब हक एम्ब्रेस, सॉरी क्या बोल रही, हक करके ना इम्प्रेस करती है अली को। अली को भी पसंद है, वो बोल रही है, लेकिन जैस्मिन को ये पसंद नहीं आ रहा है। वो वापस आके बोल दिया, साइड किक बन के मत खेल। साइड किक किसका? साइड किक राहुल का, या तो फिर साइड किक इनका, रुबीना दिलेक जी का। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा, मेरे हिसाब से गलत हूँ तो आप कमेंट में मुझे सुधार देना, मेरे हिसाब से साइड किक इसको बोल रहे हैं, अली को बोल रहे हैं साइड किक रुबीना दिलेक है, और तुझे यूज़ कर रहा है। हाँ, रुबीना दिलेक जी तो सबको यूज़ करते हैं, और ये गेम खेलने आई है, ये अली को यूज़ किया। आज भी वो स्पा में बैठी थी, पास लाके एकदम हाथ पकड़ के बोला कि इससे मुझे बचा लो, इसको तुम अपने लपेट में लेके, वो कुछ फुसफुसा के बोल रही थी। वो भी कानून नहीं है, वो भी वो गलत कर रही थी, ज़ोर ज़ोर से बोलना चाहिए था उसको। और सिर्फ अली सुने, उसको पास में बुला के एकदम पास लेके आया, आस्ते से बोल दिया भाई तू मुझे बचा ले, मुझे। वो आके क्या क्या बोल रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर गार्डन एरिया में ले जाके एकदम बगल में ऐसे हाथ करके, एकदम जैस्मीन को ऐसे करके बैठा हुआ था बंदा, डरा हुआ था, क्योंकि उसको एक फील आ रहा था कि उसका अभी अभी बॉन्ड सुधरा है। 1-to-1 खेला ना, अभी 1-to-1 उसका बॉन्ड बन रहा है रुबीना जी के साथ। तो वो ये नहीं चाहती, और वो बोली कि ये मेरा गेम है, तू मुझे कुछ नहीं बोलेगी, तू मुझे अच्छा अच्छा बोल, तू मुझे साथ दे, तू मेरे फ्रेंड बन के रहे, तुझे मिस किया, तू मेरे साथ रहे, तो किसी और के साथ झगड़ा मत कर। ये बोलने का मतलब है तुम रुबीना दिलेक से मत भिड़ो, लेकिन वो तो आई है करने।
वो तो घमासान करेगी, वो तो लड़ाई करने की मूड में है, गाड़ी में बैठ के रो रही है। उसको लग रहा है कि वो आने के टाइम पे बोला कि राहुल को बोला कि वो बॉक्स में खड़ा होके बोला, जहाँ पे लिखा हुआ था ना सपोर्ट आली करके लिखा हुआ था, वो खड़ी थी अंदर, तो वो वहीं से बोला अभी राहुल ऐसा लग रहा है कि तुझे को सपोर्ट करने से अच्छा होता। क्यों बोला ये? क्योंकि राहुल को सपोर्ट करके अभी ये राहुल जीतने वाला है, वो जान चुकी है, क्योंकि हम लोगों ने इतना वोट किया तो राहुल जीत चुका है, वो जान गया। अभी राहुल को अगर के साथ होता एटलीस्ट फिनाले तक पहुंचती, ये उसको रियलाइज हो गया। जो राहुल को सपोर्ट किया और जो एकदम टक्कर का है अगेंस्ट में, वो भी हालांकि वो भी अगेंस्ट में थे, लेकिन वो जो गेम खेलने की कोशिश की, वो गंदी वाली गेम ना, वो गेम कहीं ना कहीं सबको ले डूबा, और सबका गेम अदर्स का गेम खराब कर रहा था, गंदी मछली की तरह एकदम फैलाने वाला। लेकिन जस्मीन बहुत अच्छी लगी थी मुझे, लेकिन अगर वो ये सब चीज़ें नहीं करे ना, उसका फेस कितनी स्वीट है, कितनी क्यूट है, उसकी एटीट्यूड कितनी क्यूट है, आप बोलो ये क्यूट सा लड़की है, उसके साथ कुछ गलत, मतलब आप सोच ही नहीं पाओगे। 30 साल की लड़की है, एक 30 साल के अंदर 12 साल की लड़की, मैंने ऐसा ही बोला था। वो तो मुझसे भी छोटी दिखती है, लेकिन है नहीं, 30 ईयर्स तो हमारी एज की हो गई ना, तो फिर लेकिन वो दिखती एकदम 12 साल की इनोसेंट लड़की है, लेकिन कितना कचरा भरा है दिमाग में भैया। अब आई है, कोई इतना मतलब गुस्सा लेके नहीं आया जो पहले का प्लेयर्स था, जैसे कि जान आया, जान था पहले, जान आया और फिर वो जान आने से जान आएगा हम लोग सोचे थे, घर में जान आएगा, लेकिन वो नहीं हुआ। वो आके खुसुर फुसुर कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा। निकी तंबोली को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, ये जान आने से इसका गेम खराब हो सकता है, लेकिन निकी तंबोली यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड दिखाई है। वो भड़काने की कोशिश किया, लेकिन रुबीना दिलेक को जाके वो बोलती है कि मैं भड़कूंगी नहीं, वो जान मुझे ऐसा ऐसा बोला है, जो बोला था वो मुझे पता नहीं, लेकिन वो बोला है मैं भड़कूंगी नहीं, आप चिंता मत करो। तो इससे तो गेम क्लियर हो गया कि जान की बात में वो इतना ध्यान नहीं देगा, और जान अपना क्लियर कर रहा है, ये गेम खराब करने की कोशिश कर रहा है। अभी वो अफेक्ट नहीं कर पाएगा निकी को, लेकिन ये जो है ये अफेक्ट कर पाएगा कहीं ना कहीं। जस्मीन वसीम जो है, मुझे अभी थोड़ा सा लग रहा है, ऐसा ना भी हो सकता है, आगे देखते हैं कल क्या होता है, लेकिन मुझे राहुल महाजन का इतना ट्रोमेटिक लगा कि मुझे अभी राखी के साथ बहुत क्लियर करके बात, वो हड़बड़ा के बात कर रहे थे, समझ में भी नहीं आया क्या बोल रहे हैं भाई। इतना जल्दी 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 सब कुछ धाड़ 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 बोल रहा था, मुझे बोलना भी नहीं आता, और इतना जल्दी आप तो जानती हो, और समझ में नहीं भी नहीं आता कोई जल्दी बोलता है तो फिर क्या हुआ ना, ऐसा तो नहीं कि अभिनव के सपोर्ट बन के आया है, और वो उसको डर है कि अभिनव अगर जल्दी जल्दी निकल गया और मैं अभिनव को ही समझाता रह जाऊंगा, उसका गेम है ही नहीं, और मुझे निकाल देंगे और राखी के साथ पैचअप नहीं होगा। हर किसी का अभी राखी के लिए विंदु दारा सिंह को भी ऐसा लग रहा है, विंदु दारा सिंह भी सबके पाजी भी सबके साथ जाके बातें कर रही है, जान भी सबके साथ हंस बोल रहा है। हाँ, तो सबके मन में भी डर है कि ये अगर कंटेस्टेंट निकल गया तो अर्शी के भैया के तरह हम भी निकल जाएंगे, तो घर में रह नहीं पाएंगे एक हफ्ता पूरा। अगर एविक्शन हुआ तो मुझे पता भी नहीं, प्रोमोज में मैं कुछ एक लाइन सुना है कि एविक्शन हो सकता है कल, लेकिन प्रोमोशन में देख के प्रोमो देख के कुछ बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार मेरी स्पेकुलेशन गलत हो गया था, और पब्लिक में आके मैं बोली नहीं तब तक किसी को, तो तो अच्छा है ना, गलत मैसेज नहीं डाला। तो प्रोमो में देख के मैं कुछ नहीं बोलूँगी कल कौन नॉमिनेट होता है या एविक्शन होता है कल या आज, ट्यूसडे तो गिर गया, देखते हैं।
12 तो बज चुका है भाई। देखते हैं देखते हैं कौन नॉमिनेटेड होते हैं। नॉमिनेटेड तो सभी है, अभी नॉमिनेशन से डायरेक्ट एविक्शन होगा या नॉमिनेट, या फिर बिग बॉस ये भी बोल सकते हैं कि किसको बचाना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली जो जो अंदर गया एक एक वोट मिलेगा, 7 जन, तो कौन किसको बचाएगा, एक एक वोट तो पक्का है। मतलब राहुल के लिए जो गए हैं तोशी, तो राहुल को, तोशी जी कितना सुंदर गाना गाते हैं, और राहुल जी ने बहुत अच्छा, हमारा राहुल जीतेगा ही जीतेगा। अली ने, अली के लिए गाना इतना सुंदर गाया। लेकिन एक बात बोलो, मुझे बहुत गुस्सा आया था जब इतना छोटा, आप एक अच्छा गाना गा रहे हो लंबा गाओ ना, ये गाने का शो नहीं है सब लोग बोलते हैं बोल के ना वो डर गया है, तो छोटा सा गाना गाया यार, लंबा गाना गाओ, खुल के गाओ, दिल से गाओ। आप जीत रहे हो, आपको जानना चाहिए आप जीत रहे हो। राहुल वैद्य जी, आप जीत रहे हो। राहुल कृष्ण वैद्य है, वैद्य नाम है जिनका, जीत तो वही रहा है भाई, बिग बॉस 14 का ट्रॉफी लेके आएगा राहुल कृष्ण वैद्य। मैं बहुत फ़ैन हूँ, मैं इंडियन आइडल से उनको जिताते आ रही हूँ, और मैं किसी की पीआर नहीं करूँगी, किसी की प्रमोशन कर नहीं करूँ भाई, कोई मुझे पैसा नहीं दे रहा, मैं क्यों करूँ, लेकिन मैं खुशी से कर रही हूँ, क्योंकि अब मुझे पता चल गया इतना वोट्स आया यार, 10 मिलियन से भी ऊपर है, अभी ऊपर जा रहा है। अब मैं, क्योंकि मैं कांस्टेंट कर रही हूँ ना, और सब लोग कांस्टेंट कर रहे हैं, आप भी करो। आप, मैं जानती हूँ आप राहुल को पसंद करते हो, करो ना यार। नहीं नहीं करो, कोरोना, कोरोना वायरस को दूर भगाओ, और वो स्प्रे करो हाथ में, और कोरोना को भगाओ, और राहुल वैद्य, राहुल कृष्ण वैद्य को जिताओ 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 ना यार, अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा करेंगे यहीं पर, और डिस्कस करेंगे, मज़ा आ जाएगा। कल एविक्शन होगा या कोई बचेगा, ऐसा हो सकता है, तो कल का कल देखेंगे। और भी कल के पहले भी मैं कल दोपहर को मैं कोशिश करती हूँ ऑफिस से थोड़ा सा कॉफ़ी ब्रेक लेके आ जाऊँगी, तो आके आपके साथ डिस्कस करूँगी। और भी बहुत सारी चीज़ें अंदर आ चुकी है, वो भी बोलना ज़रूरी है। इंटरव्यू में जाती हूँ तो फिर बहुत छोटा कम स्लॉट मिलता है इतना। आप जो जितना मुझे अब मेरी वीडियोस में सुनते हैं, इतना शेयर करते हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपने बहुत शेयरिंग की मेरे वीडियोस, सब लोगों को थैंक्स एंड ग्रैटिट्यूड। राहुल कृष्ण वैद्य जीतेगा, राहुल वैद्य फॉर द विन, ये जीतेगा भाई, जीतेगा, हमारा राहुल जीतेगा। और चाय, यार कमाल करते हो, चाय तो गरम लाई थी, मसाला टी ठंडा हो गया ना। सब्सक्राइब करो, डायरेक्टली देखना है। आप सब लोगों को, आप सबके फैमिलीज को खूब सारा प्यार और मोहब्बत, सोल वाला लव, नॉट लव लव पार्ट ऑफ, सोल वाला लव, ठीक है। आई लव यू गाइस।